अस्सलाम वालेकुम बड़ी, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? मैं बड़ा नर्वस हो जाता हूँ पढ़े लिखे लोगों के दरमियान, समझ नहीं आती क्या बोलूँ क्या करूँ। बट वी ट्राई टू हैव ए गुड कॉन्वर्सेशन। दानिश साहब से मेरी मुलाकात हुई थी कुछ अर्सा पहले रोटरी क्लब के इवेंट पे, और ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इनवाइट मी अगैन। उमर साहब को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, बहुत ही नफीस इंसान हैं, और साथ में इनकी और बहुत सी क्वालिटीज़ हैं इनका शायद आधे लोगों को नहीं पता। बहुत ज़बरदस्त एक्टर भी हैं, इन्होंने थिएटर भी किया हुआ है, मेरी फिल्म में इन्होंने एक रोल भी किया था थीफ एंड ट्रबल में। सो फिर इनके साथ भी पुराना रिश्ता है। तो आज हम बस मज़े में कैजुअल सी गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सीरियस गुफ्तगू ज़्यादा होती नहीं है ना, अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। आई थिंक दैट आई वुड लव टू हैव हेल्दी कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन। सो अली ने वो जो एस्पेक्ट मैंने बताए, उसके बाद मैं आपको आई विल स्टार्ट चार्ज पीपल फॉर नाइस ऑटो रैप हियर। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन। इट वाज एब्सोल्यूट प्लेजर जब आपने कहा कि मैं आऊँगा। सो अली को यहाँ पे देखना, a lot of aspects of Ali that a lot of people don't know about. We thought to start a little chit chat on that. So Ali Zahar जो है, where he started his career from music. उसके बाद music industry was not a one-hit wonder. Over decades he evolved. उन्होंने industry ना सिर्फ music की पकड़ी, उन्होंने film industry पकड़ी, उन्होंने production की industry पकड़ी, and then उन्होंने सारी चीज़ों को reinvent किया. So we'll have a little chit chat around that. So you work across multi platforms. Music हुआ, film हुआ, painting हुई, production हुआ. So ये सारा instinctive या deliberate का? Was this planned or it just came through? I think इस सवाल का जवाब I say it's the same as were you planned or it just came through? Sir, I think ये इस पे बड़ी गहराई है इस सवाल में जवाब। That each one of us, क्या हम प्लान थे दुनिया में इस तरह आने में, या एक कोइंसिडेंस था और एक इंसिडेंस हुआ और उस वक्त उसी तरह से हमारे माँ बाप मिले और हम पैदा हो गए उसमें से। So I think उसी में इसका जवाब ये है कि आई थिंक मैंने कॉन्शियसली भी इस चीज़ को लेके प्लान किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी को कैसे क्रिएट करना है अकॉर्डिंग टू माई ओन परसेप्शन ऑफ लाइफ, माई ओन डिज़ायर्स, हाउ आई वुड लाइक टू सी माई लाइफ। एंड आई थिंक देयर आर अदर फोर्सेस दैट आर वर्किंग बियॉन्ड अस, above us, which also are a part of our journey all the way through. Absolute. So when you say definitely आपके पास things happen for a reason. So when you achieved fame earlier on in life, very young, and you achieved global fame, वो influence आपको realize जो है, जो fame से influence आपके पास आता है, when did you realize that you had an influence? When I had my first concert, I was on stage and there were thousands of people singing my songs, and I realized that I could somehow influence them through my art, through what I do. And then slowly that influence grows, and when you start doing other stuff, you see how you can change people's lives. I have a story. There was a little girl back in the day. She was one of my friends. She came to me and she said that this young girl, she must be about 15, 16, she had cancer. She developed cancer. She was getting a treatment. So she's a fan, so if you have a message for her. So I wrote a song and sent it to her. And she heard the song, she used to hear it probably every day, a rough version of the song. I'm not giving credit to the song or myself, but eventually her cancer healed. That song was called Asma Ko Chhote Jaye Hum.
So I think in some way or the other, subconsciously, you can influence people in a lot of good ways when you're in that position. We all can. Yeah. Absolutely. So if you think that talent opens doors, what keeps it open? Well, I think everybody has their own personal beliefs and belief systems. My belief system is based on the fact that there's a there is an entity जिसकी मर्जी से कुछ नहीं हो सकता, जिसको हम खुदा कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं, और वो रास्ते खोल देता है, वो ही बंद कर सकता है। उससे इल्तिजा करें तो वो दरवाजे खोलता जाता है, उसकी मर्जी है। और अगर वो राज़ी नहीं तो फिर आप जितनी मर्जी दस्तक देते रहे वो दरवाजे नहीं खोलते। जैसा बिल्कुल सही है। It's it. I think आपकी अभी presentation जो आपको है ना वो it is very much along that lines. So definitely. So मुझे बताएं कि आपकी so when you talk about non-negotiables in life, so what were those non-negotiables that you feel either took you up or took you down? Non-negotiables for Ali Zafar. What helps you propel and make or sustain that flight is consistency. Motivation is something different, but you can't be motivated every single day. It's probably not possible. But what you can do every single day is remain consistent. For example, if you were to give the example of namaz, कभी कभी आपका ऐसा भी नमाज पढ़ने का दिल नहीं भी कर रहा होता, लेकिन आप कंसिस्टेंटली अगर पढ़ते जाते हैं अपने आप को उसमें क्या कि मैंने करना है, तो उस कंसिस्टेंसी से भी रिजल्ट आता है। सो आई थिंक I would give myself the credit that I stayed consistent with my art, with whatever I was doing. Every day I put myself in the process of creating something or the other that I have to create. It can be a thought, it can be a song, it can be a scene, it can be a conversation in my head, it could be a drawing. I'm creating in every single moment all the time. And I think all of you are also here because we're all creating our life in some way or the other, which takes us to those moments that we experience actually. The thing that brings you down, gets you down, is the opposing force. If you study the law of polarity, then you would understand that why there were two forces created. And one is the constructive, creative, positive force, and the other is the negative, the destructive, the chaotic. And therefore, the destructive, chaotic force is also serving the positive. Like the yin yang. It's a yin yang की philosophy है. उसमें अगर आप, if you allow yourself to become a channel for that destructive force, जिसको आप evil कह लें, negative कह लें, कुछ भी कह लें, then you become that antenna that will only attract negative things in your mind because आपका circuitry अब negative हो गई है. So if you're somebody who's complaining all the time, somebody who's angry all the time, somebody who's depressed all the time, then guess what happens? Life manifests the exact frequency and energy that you tuned into. So that is the choice I feel that you're given in every moment. You can either choose to be in that frequency which is positive and constructive and creative, that builds and creates art and harmony, or the frequency that can destroy, disrupt, and create chaos, inside you and hence outside you. So, was there any time in life when you said everything happened, or was there a point where intently you paused, you looked back, you rested, and you reinvented? And what was that time? I think to learn from your failures. When
So there is something that I learned, and you can probably research into this also. I would like to give a disclaimer here, by the way. Anything that I say, ये कोई हर्फ आखिर नहीं है. You have your own truth. You should do your own research into whatever I say. This is only as per my experiences and understanding. I think a lot of a mistake that we make, especially people in the power of influence, including leaders, is that जो मैं कह रहा हूँ यही ठीक है और दूसरा गलत है. तो us versus them की एक vicious cycle बन जाता है. ये एक अलग डिस्कशन है, बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपका सवाल थोड़ा सा रिपीट कीजिए. मतलब कौन सा टाइम था जब when you paused, you met yourself? So the failures, yes. So every time I fail and I was not able to achieve or manifest the reality that I had desired, I pause and I ponder and I self-reflect and I think, what is it that I'm doing wrong? What is it that I did wrong? So that self-analysis, critical self-analysis that I subject myself to almost on a daily basis. I sit down and I think. And I think thinking is very important. So I would say something that I learned along the line was studying the signs. So you can notice, आप notice करेंगे कि जब आपकी ज़िंदगी उस सिमत में जा रही है जो कि आपकी desired reality create कर रही है. अगर कोई term आपको confusing लगे तो आप you can raise your hand or ask me in the question answer section. Desired reality होती है कि जिसमें जो आपकी ख्वाहिशात है, जैसी आपकी ज़िंदगी हो वैसी आपकी ज़िंदगी का इजहार होता जाए. अनडिज़ायर्ड रियलिटी वो है कि जो आप डिज़ायर कर रहे थे वैसी नहीं हो रही, कुछ और हो रहा है. सो जब आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी क्रिएट हो रही होती है, जहाँ आप उस लम्हे में उस जगह पे उस वक्त मौजूद है जहाँ आपको होना चाहिए, तो आपको साइंस नज़र आ रहे होते हैं. कई दफ़ा नंबर्स अलाइन हो जाते हैं. आपको घड़ी पे 11-11 दिखेगा, 5-5-5 दिखेगा. कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको समझ नहीं आएगी कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या है. But this is called the science of studying the signs. So I learned that also. So every time I would stop seeing the signs, it would mean कि मैं उस रास्ते पे नहीं हूँ जिस पे मुझे होना चाहिए. और जब मुझे वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं, when the clocks start aligning, I see कि oh, I'm on the right path, where I'm exactly where I need to be. So yeah. So you all spirituality, is there a science to it? There is a science to everything. No, but did you feel that there was a science to what you were doing, or rather it was just spiritually guided? You know, the universe, this reality has been created with scientific principles. Otherwise, वो exist ही नहीं करेगी. Gravity की एक force है. Planets एक खास physics के laws के तहत orbit कर रहे हैं. If the science stops to exist, the universe will stop to exist. Hence, we call him the greatest architect, designer, artist. सब कुछ जिसने ये create किया, the creator. So I think इसी तरह spirituality को आप अगर define करें कि आप समझते हैं कि इस physical reality से beyond भी कोई चीज़ है जिस तक हम रसाई हासिल करना चाहते हैं अपने अपने belief system के तहत. Hence you're spiritual or religious, but there is a science to it. And there are various books or various systems of learning जिसको आपको पढ़ के ये साइंस भी समझ आ जाएगी कि how does it all work in the great scheme of things, the metaphysics, the quantum mechanics क्या है. मेरा वो स्पेशल इंटरेस्ट है सब्जेक्ट का, लेकिन चूँकि मेरी फील्ड नॉर्मली लोग मुझे हंसता गाता छलांगे मारता हुआ देखते हैं तो मैं इतनी सीरियस गंभीर बातें नहीं करता, लेकिन मुझे अपने लिए ये सब पढ़ना अच्छा लगता है, इसको समझना. So hence the depth that you talk about and the direction that you've taken on. So a lot of people when they're growing up, because you come in from a background which was घर के अंदर you had educationists, you had people जिनके artists भी अभी घर के अंदर. So how did that morph you into deciding कि art के अंदर you will
good persistence look for. So Ali, जो हमारी discussion हो रही थी regarding, so when I look at the household that you're coming from, उसके बारे में थोड़ा सा बताया what your parents days have. What you understand is कि आपने शुरू से बूता था कि आपने आर्ट के अंदर आपने लाइवलीहुड यहीं के ढूंढा आर्ट के, ये कुछ और करने नहीं दिया. स्ट्रेंजली बचपन से मुझ में कॉलिंग थी, फीलिंग थी कि यही मेरा डेस्टिनेशन है. आई एम गोइंग टू बी ए परफॉर्मिंग आर्टिस्ट. जब भी मुझे इसके अलावा कोई और चीज़ का बताया जाता था कि वालिद साहब भी आर्टिस्ट थे, लेकिन उनका एम्फेसिस एकेडमिक से बहुत ज़्यादा था. बहुत उनका माइंड सेट थोड़ा सा इस हवाले से सेफ था, कंजर्वेटिव, के पाकिस्तान में आर्ट के इतने ज़्यादा मौके नहीं हैं जिससे आप पैसे कमा सकेंगे. मतलब रिस्की प्रोफेशन है. कितने सिंगर्स हैं आप पे, कितने एक्टर्स हैं, कितने सक्सेसफुल हैं, वर्सेस अगर आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, किसी और फील्ड में चले जाए तो एक गारंटी लगी. वांटेड मी टू बी अ CSS करता, फॉरेन सर्विस में चला जाता है कहीं. आई वुड, मुझे अजीब सी एंग्जाइटी शुरू हो जाती थी जब भी ऐसी कोई बात होती थी. मुझे लगता था कि मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं बना ही एक आर्टिस्ट हूँ और मैं सिर्फ यही करूँगा. और आई थिंक unique वजह है कि because I was so focused since I was a child, and I had an idea of the life that I wanted, and I was able to achieve it. Absolutely. So when you look at being visible, so what responsibility comes with visibility? Your responsibility is that every word I feel, every word you speak, even think, has an energy, because everything is energy. आपको इसलिए कहा गया बहुत सोच के समझ के बोले. कोई भी आप काम करते हैं, कोई लफ्ज़ भी आप कहते हैं तो उसकी एक एनर्जी फील्ड के अंदर उसकी रेजोनेंस जाती है. So इससे ये people in a position of power and influence should be even more careful as to what they say. Absolutely. So Ali, हमने ना आप in fact last week we started doing a word के साथ we did a regular MOU. We thought you would create future viewers out of a collaboration map से. So we will अपना जो कि intellect है, so because the kids will get whatever platform where they can meet people or teaser देना, उनके intellect की भी players से get to better leadership role. What's the future direction, the future leaders do you think Pakistan need? Because you worked a lot of that. I think Pakistan need original thought. Pakistan needs to discard a lot of the things that we were conditioning to adapt as a, I would say, country. I would say a connecting consciousness. मुठ तो बाद में करते हैं. 75 साल है, दिस इज ओनली 75 years old. लेकिन ये जो खित्ता है ये हज़ारों सालों से एग्जिस्ट कर रहा है. यहाँ दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशंस, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, वो थी एग्जिस्ट करती थी. फिर एग्जिस्ट करके उन्होंने अपना रूल्स देखा, फिर वो ख़त्म नहीं होती. सो इस खित्ते की एक एनर्जी है, एक कॉन्शियसनेस है जो एग्जिस्ट करती है. तो आपको बाज़ औक़ात अगेन वो लोग जो पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, सुनते हैं, अपनी कम सतही अंडरस्टैंडिंग को प्रोजेक्ट कर देते हैं मैसेज के ऊपर, और फिर वो मैसेज उस पर ट्यून कर जाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे उसको अडैप्ट कर लेते हैं, और उनका फिर मयार सोचने का भी उतना ही सतही या कमतर हो जाता है. सो पाकिस्तान को बहुत से ऐसे लोगों को रिजेक्ट करना पड़ेगा, बहुत से ऐसे आइडियल्स को रिजेक्ट करना पड़ेगा, और बहुत कॉन्शियसली कुछ नए जवाब ढूंढने पड़ेंगे मुख्य सवालात के जो वहाँ अरसे से मौजूद. इसके लिए बहुत
तपस्या, लर्निंग और रिसर्च की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए हम बहुत सुस्त हैं। रिसर्च का मतलब होता है, पढ़ने का मतलब होता है कि अब जो मुझे आराम से बैठे टीवी पे या सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है कोई बात करता हुआ, अब मैं जाऊँ, मैं हिस्ट्री पढ़ूँ, मैं फ़लसफ़ा पढ़ूँ, मैं किताबें पढ़ूँ, मैं उन तमाम लोगों को भी पढ़ूँ जिन्होंने मुख्तलिफ राय दी हुई हैं, और वो सारी स्टडी करके फिर मैं एक अपने नतीजे पे पहुँचूँ, जो कि नतीजा भी नतीजा और आखिर भी होगा, वो भी इवॉल्व करता जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक कल्चर डेवलप हो गया है जो कि बहुत ख़तरनाक कल्चर है। वो ये है कि अगर मैं लीडर हूँ तो मेरी पिच क्या होगी, क्योंकि मार्केटिंग के लोग बैठे हुए हैं काफ़ी यहाँ पे, आप सबको पता है मार्केटिंग क्या होती है। मेरी पिच ये होगी सबसे पहले कि मैं आपके, हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टिंक्ट है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, मैं आपके सर्वाइवल को डेंजर में डाल दूँगा। यानी मैं आपको कहूँगा आप सब लोग, ये सब तबाह होने वाला है, डूम्सडे सिनेरियो क्रिएट करूँगा। फिर मैं बोलूँगा कि वो जो शख्स है उसकी वजह से सब तबाह होने वाला है और वो रीज़न है। पिच का थर्ड पार्ट होगा, मैं कहूँगा हाँ लेकिन मैं आपको बचा सकता हूँ, आप मुझे फॉलो करो। सो दिस विल क्रिएट एन अस मी वर्सेस देम सिनेरियो। ये कहने के लिए कि मैं आपको बचा सकता हूँ, मुझे अपने आप को एक बहुत सुपीरियर ह्यूमन बीइंग दिखाना पड़ेगा। मैं अपने आप को ब्रैग करूँगा एज अ सेवियर, द ओनली सेवियर। और उसके ऊपर मैं तड़का ये भी लगा सकता हूँ कि मेरे पीछे आई एम गॉड रिप्रेजेंटेटिव, कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आप खुदा की बात नहीं सुन रहे। तो इस तरह लेयर्स क्रिएट की जाती हैं और इवेंचुअली लोगों को अपने असर में लाने का ये पिच होती है, मार्केटिंग पिच। बट सम पीपल कैन सी थ्रू इट। और नई जनरेशन को ये करना पड़ेगा कि वो मुझ जैसे लोगों की बातों में आना छोड़, वो अपनी रिसर्च खुद करे, वो अपने जवाब शुरू से खुद ढूंढे, उन लोगों के साथ कनेक्ट करे ग्लोबल लेवल पे, पाकिस्तान के लेवल पे, जिनके सोचने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। माई फादर वॉज अ नॉन कन्फॉर्मिस्ट, आई हैव ऑलवेज बीन अ नॉन कन्फॉर्मिस्ट, आई डू नॉट बिलीव इन द करंट सिस्टम। मुझे ये सिस्टम्स, स्ट्रक्चर्स, ये पिलर्स, ये ठीक ही नहीं लगते, ये गलत है, क्योंकि अगर ये ठीक होते तो इनका कोई रिजल्ट अच्छा आया होता। मुझे यहाँ के बने हुए इंस्टीट्यूशंस जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शामिल हैं मुझे नहीं ठीक लगते, मैं नहीं मानता। कहना वो लिखा अभी जाने, इसलिए क्योंकि अगर हमारा तालीमी निज़ाम ठीक होता तो 75 साल में हमारे पास ऐसी क्या अजहान या शख्सियात हमने पैदा की हैं जिन्होंने दुनिया को तब्दील कर दिया। क्या हमने कोई आईफोन बनाया, हमने कोई टेक्नोलॉजी में कोई, हमने स्पेस शटल को बनाई, ईजाद की। जो ऐसा करता भी है उसके साथ हम क्या सलूक करते हैं, जैसे अब्दुल सलाम थे, उनको हम यहाँ से उनको जाना पड़ता है। तो हमारे बहुत से मसाइल हैं लेयर्स के अंदर। सो नॉलेज का एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो ये जो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं ना, कि एक इंस्टीट्यूशन है, ये क्लासरूम है, कमरा है, इस कमरे के अंदर तो 40 लोग बैठ के इस शख्स की बात सुनो 45 मिनट, फिर अगला आएगा बोलेगा इसकी बात सुनो, फिर अगला है। भाई आप 45 मिनट्स तो कोई कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर सकता ह्यूमन माइंड एक चीज़ पे। मैं बोल रहा होगा, आप पूरी देर बाद ट्यून आउट कर रहे होगे, फेज आउट कर रहे होगे, आपको भी यार कब कहना है, क्या हो गया, कब दिखाना है। तो ये तो इसलिए बने थे कि ये एक प्रिजन, मैन इंक्वाइज प्रिजन सेल्स देखता हूँ कि जब कैपिटलिज्म आया इंडस्ट्रियल एरा के बाद, उनको कुछ नौकर चाकर चाहिए थे, स्लेव्स, उनके लिए काम करने के लिए। ये हमारे लिए मशीनें बना देंगे, ये हमारे लिए कारखाना लगा देंगे, ये कारखाना चला देंगे, ये हमारे बैग्स चला देंगे। कोई माइंड ना करे प्लीज इस बात को। This is nothing personal. No, it's not personal, but you require both artists and scientists. You do? Yes. और दोनों आप, एक आपको चाहिए क्लॉक मेकर्स और चाहिए टाइम टेररिस्ट। You always need those people. Look, But Nick has a big talent. absolutely. How many clock makers do we have? How many scientists do we have? Versus
how many people who are just there putting the clock together for the person who's making money from the clock. Absolutely. So That's going to be the yeah. So नई जनरेशन को इनोवेशन और क्रिएटिविटी की तरफ आना पड़ेगा, जहाँ अपने ख्यालात को लेके, अपने आइडियाज को लेके पुरानी old guard has to come down absolute. and the new era. इकबाल ने इसलिए कहा था ना कि खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर. तो नई जनरेशन को चार्ज लेके एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर. क्योंकि इस अगर मैं कल तालीमी निज़ाम को चेंज करने जाऊँ तो इतनी रुकावटें आ जाएंगी रास्ते में, स्टेट लेवल पे फलाना मिनिस्टर पे फलाना कि वो होगा ही नहीं. लेकिन आई कैन क्रिएट अ पैरेलल सिस्टम ऑफ लर्निंग. जिस तरह इंसान को हील करने के कई सिस्टम्स हैं में, उनमें से एक तरीका फार्मास्यूटिकल का है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, फिर कई और. एक तरीका ये वाला एलोपैथी है, लेकिन आप पैरेलल तरीके टू हील क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिसर्च से इंसानों के. सो दैट इज व्हाट प्लान आइडिया इज. So you work with multiple brands, larger life, large career. What do you think lack? जब हम ब्रांड की बात करते हैं, मार्केट की बात करते हैं, do you ever felt as an outsider, non-marketer, you felt this is something that is missing Pakistan की marketing in brands generally? I think it was okay. Is that for improvement or about it? You know what? Or do you want to take it to the heart? I mean, see, again, I am nowhere to judge anybody. I think that everybody who starts a business, you make a product. We are living in a capitalist era. Capitalism नहीं होता है कि इंडस्ट्री लगती है, सरमायादार को उसमें से मुनाफा चाहिए. उस मुनाफे को इंक्रीज करने के लिए वो अपने सारे टूल्स यूज़ करता है, जिसमें से एक टूल ऑब्वियसली मार्केटिंग है. लेकिन कुछ लोग ये बहुत जिम्मेदारी से करते हैं. यानी कि अगर मैं एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो इंसानों के लिए अच्छी नहीं है, तो देन आई बिकम अ रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन. मीनिंग कि जब पता है कि शुगर सबसे बड़ी दुश्मन है इंसान की बॉडी की हेल्थ वाइज, और आप अगर बच्चों को शुरू से शुगर पे लगा देंगे और इतनी शुगर उनको दे रहे हैं डेली कि वो उनकी उसकी वजह से फिर ज़िंदगी में आके जाके कोई ओबीस हो जाता है, कोई वेट गेन करता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसका अगर आप तो ग्रेटर थिंग्स पे, कारमा पे, या जिस चीज़ पे आप बिलीव करते हैं, ये बिलीव करते हैं कि उसका इम्पैक्ट आपको आएगा भाई, जैसे मैं तो ऐसी कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करूँगा, ऐसे बिजनेस पे एनर्जी डालूँ. लेकिन मैं खुद इसका कसूरवार हूँ. मैंने कई ऐसी प्रोडक्ट्स इंडोर्स की हुई हैं जो कि जिनको हम जैसे लोगों को देख के फिर बच्चे पीते हैं, खाते हैं, वो सारा करते हैं, जो कि अब मैंने कम कर दिया. आपने मुझे रिसेंटली शायद ना देखा हो सारा. तो आप कॉन्शियसली आप एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं. ज़ाहिर आपने कम बाद भी चलाना है अपना, वो सब करना है, बट आप आहिस्ता आहिस्ता से एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन पिक अप more aware, consciously aware, and a morally responsible businessman also. That's what I'm saying. So you're saying this is a moral responsibility needs to go hand in hand with the business. It has to, in my opinion. Because I think this is something that the young generation right now, they can see through it. They cut through it. उनको पता चलता है कि which business is morally, इसका moral purpose strong और किसका weak है. This young kids can do it now. And I think they're superior intellectually. अगर आप देखिए, they're superior. New generation जो आई है, CPU बेहतर है, बस आप play it. So I think they can cut through it. Next to आप नई जनरेशन में अगर देखें तो you can't be fool them anymore for too long because they're too consciously aware, they're too exposed now. पहले सिर्फ 2 चैनल होते थे, पहले सिर्फ एक था PTV का, 2-3 आए. अब इतने ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आप वो चीज़ देखते हैं, ऑथेंटिसिटी. मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बताता हूँ. जर्मनी में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया जिसमें उन्होंने they had some sort of an instrument or something जिससे वो आपकी फ्रीक्वेंसी से आपके फीलिंग को कैलकुलेट कर सकते थे. यानी कि they could feel कि इस वक्त उमर क्या फील कर रहा है, क्या ये गुस्सा फील कर रहा है, कौन सा इमोशन है, क्या ये मोहब्बत फील कर रहा है, क्या ये रिजेंटमेंट फील कर रहा है. सो बिकॉज एवरीथिंग इज
a frequency and emotion and energy, everything is energy. So उसको रीड करके वो बताता है. So आपको पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग क्या चीज़ थी, सबसे पोटेंट ह्यूमन बीइंग जो देता है एक असर, वो क्या थी? अगर आप गेस करें. लव. नहीं हो? Any guesses? No. जो कि दूसरा एक साल सबसे ज्यादा उसको अफेक्ट होता है. आई क्या है? Where is this? Not dependency, not attachment. Yoy. It is authenticity. Human beings can instantly pick up कि बंदा ठीक है कि नहीं, कि ये सही बात कर रहा है या इसमें कुछ बात गलत है. तो इसीलिए आप जितने ऑथेंटिक होंगे अपनी कम्युनिकेशन में, आई थिंक उतना ज़्यादा वो करेगी. एंड दिस अप्लाइज टू मार्केटिंग टू, आई गेस, लाइक एवरीथिंग एल्स, बिकॉज मार्केटिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द परसेप्शन एंड ह्यूमन साइकी एंड हेंस टॉकिंग टू पीपल how they would perceive it in the best possible manner. तो जब तो ब्रांड रेलेवेंस की बात करते हो, ऑथेंटिसिटी से अगर जुड़ी हो तो क्रिएट अ ब्रांड पूल क्रिएट करती है ऑटोमेटिकली. इट्स इकोसिस्टम उसके अराउंड द वर्ल्ड पर लगेगा. एब्सोल्यूट. सॉरी, अब हम आपको आपकी प्रेजेंटेशन ऑडियंस को बताने क्या मैं देखती साइजिंग. It's going to be, it's the presentation is going to, yeah, it's going to look quite, I don't know, surprising or shocking or weird or strange to you. I was thinking कि मैं because see मैं travel कर रहा होता हूँ बाहर, तो ज़रा बाहर क्योंकि different culture से different जगहों से लोग आए होते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको लीवे मिल जाता है कि हाँ. लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ पे लोग कितने ओपन माइंडेड हो गए. आई डिडंट नो दैट. लेकिन मैंने देखा है कि हम लोग काफ़ी ओपन माइंडेड हैं पाकिस्तान में. अगर कोई बात उस तरह की जाए तो हम उसको, तो मैंने कहा यार मैं अगर मुझे बनानी ही है कोई प्रेजेंटेशन, मैंने ज़िंदगी में कभी प्रेजेंटेशन नहीं बनाई, कभी सोच के नहीं बोला. जो उस मोमेंट पे होता है, बिकॉज आई बिलीव इन बीइंग इन द मोमेंट, क्योंकि आई थिंक सबसे ऑथेंटिक ही वो होता है. तो मैं बैठा हुआ था आज दोपहर को बाहर अपने लॉन में. मुझे शौक है सर्दियों में लॉन में बैठ के चाय वो ग्रीन टी पीने का और कुछ पढ़ने का. तो उमर भाई से मैंने कहा कि तुम कुछ अगर आप इसको पेन डाउन कर ले, इसका स्ट्रक्चर बना ले. तो मैंने अपना पावर पॉइंट खोला बड़े देर बाद अपने लैपटॉप में. मैं कहा चलो लिखना शुरू करता हूँ जो मेरी स्टडी है, जिसका मुझे शौक है इन चीज़ों का. तो मैंने कहा उसी पे मैं बात करता हूँ. और वो आपने शायद कभी भी मार्केटिंग को मिस्टिसिज्म के साथ इन दो लफ्ज़ों को नहीं सुना होगा आज तक. पहले कभी मार्केटिंग एंड मिस्टिसिज्म साथ में आया? मिस्टिसिज्म का मार्केटिंग तो चलो सब तकरीबन सभी उसमें होंगे. मिस्टिसिज्म का किस किस को शौक, किस किस को कुछ पता है कि मिस्टिसिज्म क्या होता है? क्वाइट अलार्मिंग. ये मेरा वो दिल है चेंज करने वाला. चले थोड़ा सा पता करते हैं. क्या ये कौन सा पट, ये लेफ्ट राइट उसको करना चाह. क्या can there be a correlation between mysticism and marketing? Let's explore that. क्योंकि मार्केटिंग का जब भी कोई प्रेजेंटेशन देता होगा तो बड़ी टेक्निकल चीज़ें होती होंगी, ग्राफ्स होते होंगे. मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए मेरे से ज़्यादा बेहतर लोग हो. अच्छा, मैंने मार्केटिंग को थोड़ा सा मैंने जॉट डाउन किया. मेरे ख्याल में मार्केटिंग इज़ नॉट एडवर्टाइजिंग, marketing is not selling, marketing is not posting content. Marketing is the ability to understand human behavior at scale. At its core, marketing is about understanding what people care about, understanding what they fear, desire, and ignore, communicating value in a way that feels natural, not forced. तो जब मेरे सामने किसी प्रोडक्ट का एड मैच में भरा दफ़ा आता है तो मैं कहता हूँ मैंने सब ले लेना, ये लिख ली. सो
good marketing does not interrupt people, it resonates with them. Marketing is the art and science of attention, perception, meaning. In a world full of noise, marketing is not about being louder, it is about being clearer. So आजकल आप देखते हैं कि हर वक्त खप फैली हुई है। अब ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे होते हैं, अगर आप ओल्ड स्कूल है तो आप न्यूज़ देखते होंगे शाम में, तो एक हर जगह एक नॉइज़ है। वो ये कह रहा है, फलाना ये कह रहा है, उसने उसके साथ ये कर दिया, उसकी लड़ाई उसके साथ हो गई। तो उस नॉइज़ के अंदर जो आपको विंडो मिलती है जिसके अंदर आप क्लैरिटी से अपना मैसेज दे सकें, वो आर्ट मेरे ख्याल में मार्केटिंग। Mysticism is often misunderstood. Mysticism does not mean religion. Mysticism does not mean superstition. Mysticism does not mean being a blind belief. At its core, mysticism refers to direct insight rather than second-hand information. Direct dialing. It is the ability to see clearly when noise is reduced, distraction is removed, the mind is not constantly reacting. तो आप अभी तक have you been able to draw a parallel? कि मिस्टिसिज्म क्या है कि आप अपने इर्द गिर्द का नॉइज बंद करके, ये मैं थोड़ी बहुत ही सिंपलिस्टिक टर्म से समझा रहा हूँ, नॉइज कैंसिल करके, जैसे वो हेडफोन्स बेचते हैं ना, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स, यू क्लीन आउट द नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शंस एंड यू गो इनटू अ स्पेस वेयर देयर इज साइलेंस एंड क्लैरिटी, ठीक, जहां से सब आइडियाज आते हैं। इल्हाम का वर्ड आपने सुना हुआ है, शोरा को शेर आते हैं, गालिब कहता है आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल, गालिब सरीद खामा नवाए सरोश है। तो वो गैब, द फील, द अनसीन, जिसको आप आंखों से नहीं देख सकते, उस फील को, उस जगह को, वो क्या है? दिस हैज़ बीन द मोस्ट फैसिनेटिंग जर्नी फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि गैब क्या है। In simple terms, mysticism is clarity of perception. Ancient cultures describe this state spirituality. Modern science describes it cognitively. Different language, same human experience. When noise is reduced, awareness increases. Pattern recognition improves, intuition sharpens. Mysticism is not escaping reality, it is seeing reality without distortion. Marketing today suffers from too much noise and too little meaning. So, आपको क्या होता है? आपको होता है यार फलाने का ऐड इतनी दफ़ा चल रहा है, हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दो, फलाना इतना कुछ कर रहा है, इसको इंक्रीज कर दो, बजट इंक्रीज कर दो। मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ये है कि मिसाल के तौर पे फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी शायरी की कभी मार्केटिंग नहीं की, लेकिन अब तक पहुँच रही। माइकल एंजेलो ने अपने आर्ट की कभी मार्केटिंग नहीं की, लेकिन सबसे बड़ा आर्टिस्ट दुनिया का है, वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिस्ट। इसी तरह बहुत से ऐसे आर्टिस्ट, आइंस्टाइन ने कभी अपनी मार्केटिंग नहीं की, लेकिन आज भी आइंस्टाइन को सब जानते हैं विदाउट एनी मार्केटिंग। व्हाई? क्योंकि उनके काम में, बात में मीनिंग था कोई, जो कैरी कर जाता है थ्रू टाइम एंड स्पेस। सो इट डिपेंड्स व्हाट पर्सन यू आर और व्हाट डज योर brand stand for. Algorithms reward speed. AI multiplies content. Platforms reward reaction, but reaction is not insight. Great marketing requires deep understanding of humans, emotional intelligence, original thinking, which is greatly lacking हमारे यहाँ पे। सब borrowed है, copied है, influenced है, क्योंकि वो आसान है, हम सुस्त हैं। These do not emerge from constant stimulation, they emerge from clarity. Yet again we keep going back to clarity. सफाई के अंदर ब्लैक बोर्ड साफ होना चाहिए,
मेला नहीं होना चाहिए. Mysticism and marketing intersect at one point, the ability to reduce noise and see what truly matters. So I think the most important question that we need to keep asking ourselves as individuals or businessmen or anybody कि mainly matter क्या करता है. हो सकता है किसी के लिए पैसा कमाना, मुनाफा कमाना सबसे ज़्यादा मैटर करता हो, which is okay. I don't judge anybody who wants to make money. हो सकता है मेरे लिए सोसाइटी में अच्छा काम CSR करके लोगों की ज़िंदगी चेंज करना मैटर करता हो ज़्यादा, किसी के लिए कुछ और करता. So to each their own. I would never judge anybody. So you have to decide for yourself. मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है. So जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, मेरे ज़हन में मैंने कहा अच्छा यार चलो ब्रांड लेते हैं. दुनिया का कौन सा ऐसा ब्रांड है जो कि जिसने एग्जाम्पल सेट की है मार्केटिंग की, क्रेडिबिलिटी की, लॉयल्टी की, कंज्यूमर लॉयल्टी की. मैं कहता हूँ एप्पल इज वन ऑफ दोज ब्रांड्स. नाइकी इज अनदर वन, बट लेट्स स्टडी एप्पल. अब एप्पल को जब हम स्टडी करते हैं तो मैं ज़ाहिर है उस इंसान को स्टडी करूँगा जिसने एप्पल क्रिएट किया, स्टीव जॉब्स को. मैंने कहा चलो यार स्टीव जॉब्स पे थोड़ी रिसर्च करते हैं दोबारा से. स्टीव जॉब्स 17 साल की उम्र में सॉर्ट आउट एन इंडियन मिस्टिक और उसके आश्रम में चला जाता है 1974 में. वो मिस्टिक गुजर चुका होता है 3 महीने पहले. वहाँ पे वो जाके एक्सपीरियंस लेता है सिंप्लिसिटी का थ्रू मेडिटेशन. और वो जो मिस्टिक था उसका फेवरेट फल था एप्पल. तो स्टीव जॉब्स ने वहाँ से उस जगह पे जाके सेरेनिटी में, सिंप्लिसिटी में, नेचर में, थ्रू मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस जो रिसीव किया उसके सबकॉन्शियस माइंड ने, लाशऊर में, उसने दुनिया में वापस आके दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड क्रिएट किया. आइडिया कहाँ आया? सिंप्लिसिटी में, नेचर में, जहाँ नॉइज कैंसलेशन हो चुकी थी. उसके बाद जो मैंने पढ़ा, मार्क ज़करबर्ग जब मुश्किल में था फेसबुक के टाइप पे, तो स्टीव जॉब्स ने मार्क को कहा था कि तुम वहाँ जाओ उस आश्रम, इंडिया जब मैं गया था. तो मार्क ज़करबर्ग वहाँ गया और वहाँ से फेसबुक का आइडिया लेके आ गया. सो आज के 2 बड़े जो ब्रांड्स हैं एप्पल और फेसबुक, उनमें एक ऐसी जगह और एक ऐसे प्रोसेस और एक्सपीरियंस का रोल में है जो कि एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस आपको लेने में उसने आपकी मदद की. मैं जाके देखता हूँ कि अच्छा यार स्टीव जॉब्स जो है इसने इतना बड़ा ब्रांड बनाया, इसकी फेवरेट किताबें कौन सी होंगी जो कह के गया है कि मैं ये पढ़ता हूँ. तो आपको ख्याल आता होगी हाउ टू मार्केट इन टुडेज वर्ल्ड, व्हाट आर नंबर्स, हाउ टू डोमिनेट द मार्केट. ये कुछ वर्ड्स होते हैं ना, हम डोमिनेट कर लेंगे, हम जी कंपेटिटर को मात दे देंगे, जो इस कंपेरेटिव वर्ड के कैपिटलिस्ट वर्ड्स हैं. स्टीव जॉब्स क्या पढ़ता था, आइए देखते हैं. ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी. ये कहता था, ये किताब ये बार बार पढ़ता था. ये मैंने किताब पढ़ी हुई है, कोशिश की पढ़ने की, लेकिन ये इतनी इसमें डेप्थ है कि वो आपको समझने और पढ़ने के लिए उसको बार बार आपको पॉज करना पड़ता है, फिर आपको कुछ मरहले तय करने पड़ते हैं, फिर पढ़ना पड़ता है. सेकंड, द मिरेकल्स ऑफ माइंडफुलनेस. थर्ड, ज़ेन माइंड, बिगिनर्स माइंड. अब स्टीव जॉब्स की तीनों जो टॉप 3 बुक्स हैं उसमें कहीं भी नंबर्स या लॉजिक नहीं है. वो तो कुछ और पढ़ा था जिससे ये चीज़ इनोवेट हुई. और चौथी, द इनोवेटर्स डायलेमा. लेट्स सी दीज बुक्स. ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी इनके बारे में थी. यू कैन, इट बेसिकली समराइजेस this person's spiritual journey from a curious Indian boy to a world-renowned yogi, detailed in his search for God and all of that. आप इस पे खुद research कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. I always find it interesting to do comparative studies in spirituality, religion, etc. Then, the miracles of mindfulness. Again, एक और perspective से बात वही हो रही है. Then, Zen mind, beginner's mind.
मुख्तलिफ कल्चर्स के जो स्पिरिचुअल टीचर्स थे उनको वो स्टडी कर रहा था, उनकी बातों को, और वहाँ से उसको आइडियाज़ आ रहे थे जो उसने इम्प्लीमेंट किए एंड henceforth. So this is something that I could put down. I'm sorry if I couldn't give you any figures or statistics on that, but I feel that ये बात की चीज़ें हैं. Initially, you need to have the big idea, and the big idea comes from the big boss, and you have to be connected. Absolutely. So, ladies and gentlemen, this was Ali Zafar in depth. And in front of you guys, the floor is open now for question answer session. So, any questions that you had, put them. He's running it. School, I keep him book anybody running. Started on this is Sohail Rana. I'm Martin Association's member moderate decades, and I had the honor of arranging your first concert at the Way Globe Usage. और ऑडियंस की देना बता दो चलो कि उस वक्त तक इंडिया जो है वो बेस्ट नेचुरल एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री अवार्ड कंटिन्यूस जीता. So then the Pakistani community representing Pakistan constate requested ARY, and together we arranged an open stage and concert of Adil along with Kilpur, Pakistan. Yeah, Kilpur was your dating manner, and repeatedly it went viral. There were thousands of people, and that award Pakistan won the best cultural activity of a country award. Able भी वन रुपया. और जो सबसे ज़्यादा मुश्किल भी पेश आ रही थी वो ये थी कि अपने बाउंसर रखे थे आप लोगों के लिए, लेकिन वो लड़के और लड़कियाँ और बाउंसर्स की टाँगों में से निकल के आप तक पहुँचना चाह रहे. मैं उस ज़माने में आतिश जवान था सर, और सिंगल भी था. अब सिर्फ सिंगर है और शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप भी है. अब बाउंसर्स की ज़रूरत नहीं हो. मार्केटिंग एसोसिएशन ओवर सोल्ड एक का शुक्रगुजार हूँ कि दे हैव एक्सप्लोर्ड द अदर साइड ऑफ इट. आज उन्हें वो वाली साइड नज़र आई जो पे शायद मुझे नहीं पता थी या बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता. तो आपकी ये जर्नी जो थी फ्रॉम म्यूजिक टू स्पिरिचुअल साइड एंड आई हायर्ड व्हाट ऑफ अ फाउंडेशन. हाउ डू यू फील बीइंग एन आर्टिस्ट इट हेल्प यू to explore this side of Alipur? Thank you. प्रोसेस बहुत पेनफुली ब्यूटीफुल था, दर्दनाक का लेकिन हसीन रहा. रूमी कहता है द वुंड इज वेयर द लाइट एंटर्स यू. सो आई थिंक अगर आप ये ख्वाहिश कर बैठे कि मुझे अपने करीब ले आ, कुछ दिखा, वो आराम से नहीं दिखाता. उसके लिए आपको कई मरनों से गुजरना पड़ता है, और आई थिंक कुछ में से मैं गुजरा हूँ, कुछ से गुजर रहा हूँ, कुछ से गुजरूंगा, लेकिन सब अच्छा. फवाद बाजू वो सुनंदर में अली किसी की सेलिब्रिटी की जर्नी में उसका मैं किसका मुकाबला काफ़ी एक्स्ट्रा तो जाती. कई सेलिब्रिटीज़ को कोई चीज़ ख़त्म कर, तो अली ज़फ़र 1.0 अली ज़फ़र 2.0 की जर्नी है अंदर, मैं इन पे कैसे काबू. प्रिंसिपल कोई जर्नी है ही ये, और कोई जर्नी नहीं. आई थिंक आपके और आपके हायर सेल्फ के बीच में जो एक दीवार है वो सिर्फ आपकी मैं है. हायर सेल्फ से मतलब मुराद है बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, जो कि इवॉल्व्ड है, इनलाइटेंड है. हमारी फील्ड में इससे बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. यही टेस्ट हर मोमेंट में हो रहा होता है, क्योंकि इट इज़ डिज़ाइन टू मेक यू फील सुपीरियर देन अदर्स. जब आप कहीं जाते हैं तो पहले आपकी तारीफ़ होती है बहुत ज़्यादा, फिर लोग और आपकी तारीफ़ करते हैं कि आप सबसे अच्छे हैं. आप जब कोई कहता है आप हमारे फेवरेट सिंगर हैं, इसका मतलब है सबसे अच्छे आप हैं हमारे लिए. तो ज़ाहिर है आपके अंदर बार बार ये बिलीव आ जाता है कि आप कोई चीज़ है. लेकिन
अगर आप अपना बीच में से जो बेसिक्स है, शुरू में जो फाउंडेशन है, एक दफ़ा उसको जमा लेना ठीक, तो फिर ये चीज़ें अफेक्ट नहीं करते। और उसको बेसिक ये है कि यार मैं ना ही पस्तू, जिसमें सूफीज़्म बहुत रोल प्ले करता है कि आई एम जस्ट ए वेसल। अली ज़फ़र इस वक्त इस बॉडी के अंदर, इफ़ यू सी दिस बॉडी इज़ अ वेसल, उसकी कुदरत का और उसकी खूबसूरती का इजहार कर पा रहा है। उसने आवाज़ दी है तो ये मेरा गले के कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं। वो कैसे करे तो ये सब जैम मुझे बंद हो जाए। आप सबकी सांस चल रही है, ये इस मोमेंट में अगर आपकी सांस चलनी बंद हो जाए तो आपकी ज़िंदगी खत्म। सो मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन इसके साथ साथ मैं बहुत कुछ हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरे अल्लाह ताला ने मुझे इतनी खुद मुख्तारी दी है, इतनी सुपर पावर्स दी हुई हैं हम सबको कि इंसान दुनिया चेंज कर सकता है, दुनिया फतह कर सकता है, बट फॉर द राइट रीजंस। 3 पैराडॉक्स है आई फील। सो द बैलेंस लाइज इन नोइंग दैट इन्नमल एमाल बिन्नियात, एमाल का दारोमदार नीयतों पर है। ज़फ़र भी अब comment. I'm a co-quality but actually much more again. Sir, I know you, sir. I respect you deeply. मैंने आपको देखा भी हुआ है already. Oh, I have a very simple and a single word question. What is success your career? सर मैंने इस पे बहुत सोचा और मेरे लिए सक्सेस is to be able to be at peace with myself wherever I am, and to be able to project that peace onto other people around me, starting from my family. अपनी अम्मी को, बच्चों को, बेगम को खुश देखता हूँ जो, तो ये मेरे लिए ultimate success है. If I get contributed to other people's happiness and joy, this is the ultimate foremost success for me. I think everything else that I do other than that is probably a tool to do that. मैं अगर गाना गा रहा हूँ, लोग खुश होते हैं, लोग enjoy करते हैं, hence शायद मैं एक successful सिंगर हो सकता हूँ. अगर मैं फिल्म बना रहा हूँ, लोग खुश हो रहे हैं, entertain हो रहे हैं, हाँ शायद मैं एक successful actor हूँ. The success to me is to be at peace with yourself. वरना तो डूब कर भी तेरे दरिया से मैं पैसा लेगा. बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे. Assalamualaikum. Really, it's wonderful to have you. I am basically representing education sector, Dr. Ahmed from URT. And since we guys engaged from teaching and learning, I was sitting here and I learned a lot from different perspectives which you have given to us of Paris Apart, which we do not see on the street. And that's what the Buddha have with. There is one suggestion, that the session of Paris Apart, of that page about it, I think so that it should be, circulated and the people at large on social media would have learned from you, from whatever you have said. This is one point. I think it is very Cool. So we noble Japanese also played it song us. You have talked about frequency, and I can understand as a musician, as an artist, we have a lot of this job in the frequency thing. What is the frequency of? What do you think should be the frequency for us as academicians, and not the academicians as such, all over different industry people see be there from different fields, different professions of life. How should we be connecting to the youth at large? Because this is the the major channel of the population Pakistan. So what is the idea? What should be the back frequency so that we should be connecting to the community of large? Thank you very much for saying. Thank you, sir. Thank you for your question. I'm very happy to receive such pertinent, profound questions, Winshad. Things that people truly need to think about. What is the frequency जो कि academic institutions और वहाँ पे पढ़ने वाले लोग
लोगों की होनी चाहिए। बाबा बुल्ले शब्द ये कहते हैं कि जवाब सारे मन के अंदर है। हमारे अंदर बहुत से जवाब हमारे सवालों के होते हैं और एक्चुअली हमारे अंदर ही होते हैं। मेरे ख्याल में तालीमी लाइन जो है उनकी, चूंकि उन्होंने इल्म बांटना होता है, बैठ के सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हमें ये नियत करनी पड़ेगी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम स्कूल क्यों बना रहे हैं, हम स्कूल क्यों चला रहे हैं, इससे हमारा एंड गोल क्या है। अगर मैं अपना ये तयन कर लेता हूँ ऑब्जेक्टिव क्या, मुझे अपने स्कूल से या इस इदारे से कम हर साल 10 लोग ऐसे क्रिएट करने हैं या पैदा करने हैं जो कि कल को जाके बड़े लोग बने, इलॉन मस्क या आइंस्टाइन या उस लेवल के। सो फिर मेरा फ्रीक्वेंसी इस चीज़ पे होगी कि मैं क्या नॉलेज उनको दे रहा हूँ, मेरी किताबें क्या पढ़ा रही है, मेरी फैकल्टी क्या पढ़ा रही है, मैं कौन से टूल्स यूज़ कर रहा हूँ। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ लर्निंग and giving knowledge, I think, is one of the most divine frequencies. For me, learning is a divine process, just like art is. So I think once we tune into that, we'd be able to find a lot of answers. I think learning should be done in a space and place which is joyful. ये इस पे रिसर्च है कि जब बच्चे या इंसान इन स्टेट ऑफ जॉय होता है तो वो ज़्यादा ग्रास्प करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मैं ये देखता हूँ कई दफ़ा कि maybe in some ways we don't need to reinvent the wheel. मिसाल के तौर पे if I was the education minister or the prime minister, I would just say don't reinvent the wheel, study the world. दुनिया का बेस्ट एजुकेशन के रिजल्ट्स किस मुल्क में आ रहे हैं। तो कोई मुझे कहता सर फिनलैंड, मैं कहूँ यार फिनलैंड का लाओ सिलेबस क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं ये बच्चों को, कैसे पढ़ा रहे हैं। तो जब मैं उसको स्टडी करूँगा तो मैं देखूँगा कि टीचिंग आवर्स ही शायद 4-5 घंटे हैं टोटल दिन में, उसके अंदर से भी 60% वो आउटडोर्स हैं। बच्चे जो हैं वो दरख्तों पे चढ़ रहे हैं, बाहर खेल कूद कर रहे हैं, और तो उनकी लर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारे यहाँ 8-8 घंटे का जाके भी बच्चा जो है बेस्ड सारा रटा सिस्टम है। सो पहली बात तो मैं सिलेबस पे नहीं जाऊँगा। सिलेबस से मुझे खासी चिढ़ है। द ओनली थिंग दैट डिस्टर्ब्स मी, जब सिलेबस आता है ना जी किसी का बनाया हुआ, पहले मैं क्वेश्चन करूँगा ये बनाया किसने। ज़ाहिर कुछ लोग बैठे होंगे, उन्होंने कहा होगा यार आज से हम इतने लाख बच्चों को किताब में ये सब्जेक्ट इस मजमून को इस तरह पढ़ाएंगे। भाई क्यों, क्या कोई और सब्जेक्ट, कोई और तरीका, कोई और चीज़ भी हो सकती है, उसको क्या है। सो जैसे मैंने कहा कि पैरेलल सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्रिएट करना पड़ेगा, आपको एक पैरेलल फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। जिस तरह म्यूज़िक में आम तौर पे जो राइज फ्रीक्वेंसी है वो 440 किलोहर्ट्ज़ है कई दफ़ा, लेकिन ये 440 किलोहर्ट्ज़ जिस पे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ट्यून्ड होते हैं, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दानिश वो लगाइए थोड़ा सा वो तानपुरा, अब मैं आपको मैं कर देता हूँ साइड, आपको म्यूज़िक भी थोड़ा सा सुना देते हैं, आपको मज़ा आएगा थोड़ा ऐसी तरीके से। ये सी शार्प के नोट के ऊपर तारपुरा है, बड़ा पुराना इंस्ट्रूमेंट है, इसको लगा के पुराने उस्ताद रियाज किया करते थे। थोड़ा समझ, थोड़ा सा पुराने जो उस्ताद थे वो इस नीयत से रियाजत में बैठते थे कि हम इबादत करने लगे, यानी कि हम इसके थ्रू कनेक्ट करेंगे इस फ्रीक्वेंसी से, बिकॉज दिस इज रेजोनेंस, एक फ्रीक्वेंसी है। और मैं सबसे पहले अपनी बॉडी को इसके साथ अलाइन करूँगा। अब सिर्फ अलाइन करने में मुझे 10-15 मिनट इसी में लग जाएंगे। मैं बिल्कुल उसके साथ साथ अलाइन करूँ। फिर मैं
सारे, ये अगली फ्रीक्वेंसी है, सारे सा। अब इसी सफर में कितना कुछ छुपा हुआ है, सारे सा। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन चेंज हो रही है, 432 सारे सा। तो ये फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रही है लाइक मैथमेटिक्स। अब मुझे ये बताएं कि ये किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है? नहीं पढ़ाया जा रहा, क्योंकि वो कहते हैं म्यूजिक वो हॉबी है जी, बच्चा साडा गांदा भी है थोड़ा बहुत है भी गा लेता है। किसी ने समझा ही नहीं, तो जब खुद समझ नहीं आई तो अगले को कैसे समझा पाएंगे? सो ये वो चीज़ें हैं, सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें सारे का, ये तीसरा आ गया, सारे का मा 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 ग मा ग मा रे, सारे गा मा पा, सारे गा मा पा मा ग रे सा। अब ये है म्यूजिक, 7 सुर होते हैं, तो सारे गा मा पा, सारे गा मा पा ग रे सा, सा नी नी सा नी सा नी ध पा मा ग रे सा। इसी में कोई गाना बन जाता है। यानी कि एमन में, एमन जो राग है वो शाम का राग है। बड़ों ने बहुत सालों में रियाजत से, तपस्या से ये राग फिर बने। अब मुझे कोई शायरी आती है, मिसाल में क्रिएटिविटी क्या होती है। आज यहाँ बैठने का मज़ा आ गया, लेट्स सपोज ये लाइन है, तो मेरा क्रिएटिव माइंड बैठेगा, उसमें जाएगा और वो कहेगा, सुरों को ढूंढेगा। आज यहाँ बैठने का, आज यहाँ अभी उसी वक्त तख्लीक हो रही है, ठीक। आज यहाँ बैठने का मज़ा मज़ा आ गया। मैं सुर ढूंढ रहा हूँ कि क्या होगा, वेरिएशन देखता हूँ कि नहीं यार ये मज़ा नहीं। आज यहाँ बैठने का मज़ा आ गया, तो ये लफ्ज़ बन गया। तो इस तरह से फिर ये इसकी कई फॉर्मेशंस बनती जाती हैं। सो ये तख्लीक है, ये म्यूज़िक है, और ये वो सब्जेक्ट्स हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे बस में हो तो मैं आर्ट ऑफ म्यूज़िक, क्रिएटिविटी और आर्ट ऑफ हैप्पीनेस कंपल्सरी सब्जेक्ट हर स्कूल में रखता हूँ। डांस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दी, जो क्रिएटिव परफॉर्मिंग आर्ट्स में डांस है, म्यूज़िक है, दूसरी चीज़ें, ये सभी चीज़ें। थैंक यू। अरे फवाद क्या हाल है? ठीक है, ये मेरे बड़े पुराने मेरे साथी हैं, CEO तो अब होंगे, लेकिन ये मेरे एक तरह से उस्ताद भी हैं। मैं इनके स्टूडियो में जाया करता था न्यू कैंपस में, बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं ये, उनके साथ जैम किया करता था। कैसे फवाद साहब? अच्छा, मेरा क्वेश्चन था कि करंट म्यूजिशियंस जो हैं उनके लिए बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं। जी, आई थिंक अगेन आई वुड एम्फसाइज फर्स्ट ऑन पर्सनल एक्सेलेंस। जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने कभी अपनी मार्केटिंग नहीं की, उनके काम ने उनकी मार्केटिंग की। तो मेरे वालिद साहब ने भी मुझे यही मशवरा दिया था कि तुम एक PR शेयर, तुम अपना, तुम्हारा काम तुम्हारी PR और मार्केटिंग करेगा। हैविंग सेड दैट, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपको आजकल की दुनिया में, मुझे भी ऐसे टैक्टिक्स यूज़ करने पड़ते हैं कि लोगों को आप इतने केओस में, नॉइज़ में थोड़ी देर के लिए कहें कि अरे मेरा नया गाना है, ज़रा सुनो तो सही। So I think social media is a great tool if effectively used for marketing for new musicians, क्योंकि एक ज़माना था कि अगर वो चैनल्स पे नहीं जाते थे, चैनल पे उनका गाना अगर नहीं चलता था तो कोई नहीं देख सकता था। लेकिन आज तो कोई भी बच्चा यहाँ बैठे हुए टिकटॉक बनाए, अगर उसमें हुनर है, टैलेंट है,
कोई तान मारे, कोई गायकी ऐसी करे तो वो सब सुन सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी से ट्राई करते रहे, कहीं ना कहीं आप पहुंच ही जाते हैं ज़िंदगी में, अगर नियत ठीक हो, मेरा ये मानना है, और टैलेंट हो। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम अली। मैं हूँ सैयद शुमाइल अखबार और मैं हूँ मिलत ट्रैक्टर्स का मार्केटिंग मैनेजर, तो ये खुद मार्केटिंग करी। तो अब उसके बाद ये है कि मैं आपसे मुलाकात की थी जब आप 2001 में टूर आए थे लव स्टाइल अवार्ड्स के लिए कराची, ओके। और फरिया अल्ताफ जब ये कंडक्ट कर रही थी सारा, अच्छा। कैंपेन उसमें था, उसमें माय कज़न वर आल्सो देयर, and my brother, you came to our apartment, and there you were singing the song Channo, and that was you were supposed to release it. अच्छा, that time. जी। So when I saw your transition from modeling to being a good-looking mashallah person, and modeling आप कर रहे थे, फिर उसके बाद म्यूजिक का पता चल रहा था कि म्यूजिक भी करेंगे, एक्टिंग से कॉलेज जीन्स वगैरह उसमें, so many art forms you perform. Which one is your favorite? Number one, I think it's music. जैसे नजर आ रहा है, लेकिन you have mastered all the art forms, जिसमें आपके लिए acting सबसे ज़्यादा है. And then you even went and you conquered Bollywood. So एक तो ये आर्ट फॉर्म के बारे में बताइएगा, एक तो being a musician, single-handedly जो है constructing in almost like an industry, where musicians, lot of rock musicians, as you know, उस ज़माने के बहुत सारे बैंड्स थे, और कराची में बहुत सारे लोग थे, लाहौर में भी थे, इस्लामाबाद में भी थे. They left out of music and they started doing their own stuff. Maybe they were not that convinced with what they had to do. लेकिन you went to Bollywood, and मुझे ये लगता है कि बॉलीवुड ने जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बंद कर दिया आने से, I think you were the reason, because I think you could have conquered Bollywood easily, and I could see some sort of fear on their faces also कि यार ये कौन आ गया भाई, ये तो गा भी रहा है, डांस भी कर रहा है, एक्टिंग भी कर रहा है अच्छी. तो how do you feel about that? That's a compliment also, and sort of a intriguing question also. Thank you. Thank you so much. I could think कि हाँ ऐसी रात होगी जब मैं कराची में होऊंगा, और बिल्कुल लक्स जन्मों से पहले ही. My transition from a model to a singer, yeah, it was interesting. शुरू में मुझे याद है 18 साल का था, तो मुझे पहला तलो ऑयल का ऐड मिला था, उसके 20,000 मुझे दिए गए थे, तो मैं बहुत खुश हुआ था. उसमें मैंने एक पायलट का रोल प्ले किया था. 18 साल का लड़का आता है, माँ से मिलता है पायलट बन के. उसके बाद मुझे वो असद वकास डायरेक्टर्स, उनको मैं अच्छा लगा एज ए मॉडल. उन्होंने मुझे फिर क्लोजअप का ऐड दिया, मेरे दांत अच्छे थे, हेड एंड शोल्डर्स का दिया, बाल अच्छे थे. फिर कई ऐड मैंने किए, फिर लवली का भी किया हुआ है मैंने. So, पता नहीं क्या क्या जिंदगी में गुमराही के दिन थे, चीज़ें क्यों ही हैं, बट लेकिन दिल हमेशा म्यूज़िक की तरफ था. इंडिया का ये था कि मेरे वालिद साहब हमेशा ये कहा करते थे, क्योंकि उनका बड़ा पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल स्टडी उनकी काफ़ी है, कि यार पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना, उसमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती में इसका बड़ा हाथ है. अगर पाकिस्तान और इंडिया के अच्छे रिलेशनशिप हो जाएं, जैसे कायद-ए-आज़म कह के गए थे कि मैं चाहता हूँ कि ये अमेरिका और कनाडा की तरह हो, तो हमारी आपकी इकॉनमी बहुत अच्छी हो सकती है. लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं करते. कहीं वो बात उस बच्चे के लाशोर में रह गई होगी. और जब मैं इंडिया पहली दफ़ा गया, तो मेरे माइंड में ये बात थी कि मैं यहाँ पे ये चीज़ एक ब्रेक करूँ कि पाकिस्तानी कोई हीरो नहीं बन सकता इंडिया में, और आज तक ऐसा नहीं हुआ. सो मेरी डिटर्मिनेशन हमेशा इतनी स्ट्रॉन्ग रही है इनटू व्हाट आई वांट टू अचीव, कि वो फिर आगे कुछ सालों में मैनिफेस्ट हो जाती है. दैट इज़ व्हाई आई एम सच अ बिलीवर इन दिस, कि आपके जो अपने यकीन होते हैं वो आपके सामने उनका इजहार होता है ज़िंदगी में आगे जाओ. तो पहली फिल्म मुझे ऑफर हुई तेरे बिन लादेन 2008 में, मैंने वो शूट की.
अब तेरे बिन लादेन जब मैं शूट कर रहा था इंडिया में, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है और अजीबोगरीब है कि मैं कमरे में बैठा हुआ रात को शूटिंग के बाद मैं टीवी लगाता हूँ तो वहाँ पे बॉम्बे अटैक्स हो रहे थे। तो अब मेरे वालिदैन बहुत परेशान हो गए, सारा ज़िम्मा पाकिस्तान पे था। तो मुझे तो कहा कि तुम फ़ौरन वापस आओ। मैंने उन दिनों नई ये एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, द सीक्रेट, जिसमें वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताते हैं, सिखाते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग दैट। तो मैं हर वक्त उस स्टेट ऑफ मेडिटेटिव स्टेट में रहता था कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड विल हैपन अकॉर्डिंग टू माई विशेस। सो आई सेड नहीं, आई विल not let fear come into play. I will stay here, complete the film, and then come back. So I stayed in India. We went to Hyderabad Film City. The producers were also very cooperative and protective of me. Completed the film and came back to Pakistan. वो फिल्म रिलीज हुई तो इंडिया की बड़ी कल्ट कॉमेडी हिट बन गई, स्लीपर हिट। उसके बाद फिर उस फिल्म की वजह से मुझे मेरे ब्रदर की दोनों फिल्म मिली, इसमें कटरीना थी और इमरान था। यश राज स्टूडियो, इतने बड़े स्टूडियो की फिल्म। जब मैं स्टूडियो में गया तो सामने यश चोपड़ा जी और उनकी दीवारों पे अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, सारे हीरोज यार, उन्हें तो सबके साथ काम, उनके पोस्टर्स थे। तो एक दिन याद है कि मैं वहाँ से उनका कॉरिडोर से सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, तो उनका हॉल ऑफ फेम था। तो वहाँ तस्वीरें लगी थी, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, फीमेल कुछ बड़ी परवीन बॉबी है वो, और मेरी भी तस्वीर उधर लगी हुई थी। तो मुझे आई फेल्ट वेरी प्राउड यार। यकीन नहीं आ रहा था कि यार एक लड़का लाहौर का, उस बैकग्राउंड का, यहाँ तक, क्योंकि हमारे अंदर बॉलीवुड एक बहुत बड़ी फैसिनेशन थी ना, सोचा ही नहीं जा सकता था कि वहाँ को जाके काम कर सकता है। शायद नहीं हमारे बोलते हैं, आई थिंक सबसे ज़्यादा शायद मुझे वहाँ फिल्में करने का मौका मिला। लगभग 7 फिल्में मैंने वहाँ की, और फिर ये 2016 में ये सिलसिला बंद हो गया, क्योंकि जो नई उनका जो सेटअप आया, आई वुड लाइक टू कॉल इट सेटअप, उनको मुझे पहले ही पता चल गया था कि अब, क्योंकि हुआ क्या था कि पाकिस्तान शुरू से वाज बीइंग लेबल्ड एज ए कंट्री जो कि टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता है, सिर्फ इसकी एक्सपोर्ट टेररिज्म है। एंड हियर वाज somebody like me and then other artists like फवाद भी फिर आए, मायरा भी आई, और हम लोग जो हैं आतिफ गाने में, राहत में, हम लोग पोस्टर बॉयज बन गए थे उनकी नई जनरेशन के। तो ये कैसे हो सकता है कि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट है और यहाँ पे, जाहिर है अगर मैं भी उनकी जगह हूँ तो मैं तो ये, और मेरा ये एक ख़ास पिच हो, मार्केटिंग पिच तो मैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो सबसे पहले आई ऑल्सो रियलाइज कि उनको शायद इस चीज़ का ज़्यादा एहसास है कि आर्टिस्ट कितना इन्फ्लुएंशियल होते हैं, कि उन्होंने सबसे पहले हमें वहाँ से निकाला। और फिर एक हफ्ता मेरी फुटेज को लेके और फवाद और मायरा को लेके उन्होंने मेन स्ट्रीम टीवी पे, वो जो उनका एक एंकर है जो बहुत चीख के बोलते हैं, उन्होंने हमारी फुटेज लेके चलाई कि ये यहाँ पे काम क्यों कर रहे थे और ये पता नहीं क्या है, या ये बोल नहीं रहे, और फलाना लॉट ऑफ कैरेक्टर असैसिनेशन। बट फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं एडवर्सिटी में भी कोई अच्छी चीज़ ढूंढ लेता हूँ। मैंने कहा यार दिस इज अ चांस फॉर मी टू टेक दैट नॉलेज एंड अप्लाई इट इन पाकिस्तान एंड मेक माई ओन पाकिस्तानी फिल्म फॉर पाकिस्तान, फॉर द पाकिस्तानी पीपल, और यहाँ की इंडस्ट्री में मैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करने का ही मुझे जो मैं करना चाह रहा था पिछले 4-5 साल से। तो फिर मैंने थीफ एंड ट्रबल बनाई, तो उसमें रिकॉर्ड तो हो दिए यहाँ पे। सो आई सी कि अगर ज़िंदगी में कोई रास्ता बंद हो जाए, अल्लाह मियां बंद कर दे, तो उस पर भी मायूस नहीं होना चाहिए। 10 और रास्ते इसका मतलब है खुल रहे हैं। शायद अगर मैं वहाँ होता, मैं कभी कभी सोचता हूँ, और मैं आपकी बात से एक्चुअली गरूर किए बगैर एग्री करता हूँ कि अगर मैं वहाँ होता तो हमारा, ना सिर्फ मेरा, आई थिंक फवाद इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट, मायरा खान, ये सब, हमारा स्टेटस उनकी जो बड़ी, क्योंकि रणवीर जो है वो मेरे उसी साल में आया था जब मैंने तेरे बिन लादेन आई थी, तो हम दोनों इकट्ठे ही हमारा डेब्यू था। इनफैक्ट एक अवार्ड शो पे उन्होंने मुझे बुलाया, जी सिने अवार्ड, उन्होंने कहा कि आपको हमने बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड देना है, एंड पे उन्होंने उसको दे दिया। तो मैंने कहा चले कोई मसला नहीं बट आई फील दैट या थिंग्स वुड बी डिफरेंट, बट
Then I also feel कि जो मेरी फैमिली के साथ, मेरे बच्चों के साथ यहाँ पे मेरा टाइम गुजरता है, मेरे अपने लोगों के साथ, मुल्क के साथ, बोलना मेरे पास टाइम नहीं होता. Maybe I would have been a bigger, much bigger star, but too busy to spend time that I have with my family. So my paradise lies with my family, and everything else is a bonus for me now. So yeah, so I hope that answers your question. So fantastic. I mean, तो ये इसी तरह क्वेश्चन आंसर सेशन चलता रहेगा मुझे लगता है, if you do not put an end to it. So guys, with that, I think I would hand it over to the General Secretary to come in and intervene and stop the question answer session so that we can call it a night. But Ali, thank you so much for your time, your availability, and excuse me. beautiful. Thank you so much. It's my honor. There is one question. Yes, sir. I was part of your team जब आपने LG मोबाइल की एड्स किए थे और जहाँ आपने ब्रांड ऑथेंटिसिटी की बात की है एज ए सेलिब्रिटी, और उस प्रोसेस से भी मैंने आपको देखा है, क्योंकि उस टाइम पे जब आप LG मोबाइल के एड्स करते थे तो आप हमारी टीम को भी कहते थे यार तुम लोग सारे नोकिया यूज करते हो, LG का एड तुम कर रहे हो, ठीक है? तो मुझे याद नहीं, लेकिन हो सकती है, it sounds like me. और उसके बाद ऐसा भी हुआ कि एक रियल एस्टेट कंपनी के थ्रू एक ऐड आपको ऑफर हुआ और आपने कहा कि यार ये ऑथेंटिक नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, एंड दे वर ऑफरिंग यू वेरी गुड अमाउंट, बट वो बात ही थी. अच्छा, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि अभी जिस तरह रमज़ान आने वाला है, देयर सो मेनी फाउंडेशंस और वो एडवर्टाइजिंग पूरा ब्रस्ट करती हैं हर मीडियम में, तो कभी एक तो ये कि वहाँ पे फाउंडेशन की ऑथेंटिसिटी जो है बड़ा मैटर करती है कि कौन सा ऑथेंटिक है, किसको पैसे देने चाहिए. नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक आपने मैच लेवल पे अपनी फाउंडेशन को लाइक एडवर्टाइज नहीं किया या इतना वोकल नहीं हुए इसके बारे में, ये इसके बारे में बताइए. That's a good question. I feel, जैसे मैंने आपसे कहा कि I feel very responsible with people's donations and money. मैं अगर किसी से पैसे मांग रहा हूँ तो उसका एक एक पैसा, एक एक उसकी पाई उस चीज़ पे जानी चाहिए जो उसका बेस्ट इस्तेमाल हो, करने वादा किया. मेरा जो विजन है वो एक ऐसा मॉडल इंस्टीट्यूशन और स्कूल बनाना है जिसकी मैंने बात की, जहाँ पे तालीम और एजुकेशन और नॉलेज इतना एक जॉयफुल प्रोसेस हो और ये सारे जो सब्जेक्ट्स और सिलेबस वहाँ पे लागू और अप्लाई हो. वो समझाना लोगों को मुश्किल हो जाता है बिकॉज इट इज़ अ यूटोपियन काइंड ऑफ अ यूटोपियन कॉन्सेप्ट, राइट? तो इसलिए अब तक ज़्यादा पैसे मैं खुद ही डाल रहा हूँ उसके अंदर. आई एम द बिगेस्ट डोनर ऑफ माई फाउंडेशन. हमने अभी तक 2 गवर्नमेंट स्कूल लेके उनको ट्रांसफॉर्म किया है, बच्चियों को AI लगा के दी है, लैब्स लगा के दी है. लेकिन फाउंडेशन और चैरिटेबल वर्क आपका बहुत टाइम मांगते हैं. आई एम लुकिंग फॉर अ टीम लाइक माइंडेड पीपल जो मेरे इस विजन के साथ एग्री करते हैं, और अगर ऐसे लोग हैं तो वो आके उसको चलाएं, उस पर काम करें, क्योंकि एक टीम एफर्ट होती है, मैं अकेला नहीं कर सकता. हमारी छोटी सी एक घर की टीम है, मेरे मामू उसको देख रहे हैं, वालिदा देख रही हैं, बट आई नीड पीपल जो इस पर बिलीव करते हैं. यू गाइज यू आर मोस्ट वेलकम. कम एंड sit down with us and be a part of this vision where I feel that we need to completely transform the education system, because ये जो हम अगली नस्ल बनाएंगे ना, क्योंकि जो लोग बड़े हो चुके होते हैं उनको चेंज करना मुश्किल हो जाता है, वो खास मोड में ढल जाते हैं. लेकिन हम अगले 20 साल का सोच के, 10 साल का, 30 साल का सोच के एक नई जनरेशन क्रिएट कर सकते हैं जो कल के लीडर्स बन जाए. एंड इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू कंट्रीब्यूट, हमारी वेबसाइट है alizafoundation.org. You can go there, you can donate if you believe in the vision. Otherwise, come and see what we're doing, sit with us, and we can work on this together also. Thank you very much. I believe it's the last question done. आपकी इसी बात पे एक statement है कि when artists choose purpose regarding your CSR activity,
then it becomes a movement. I think you have started the movement, and we are with you. And whatever we can do at our platform, we will look into it, how we can proceed on that. Thank you, And, sir. one more thing, that influence regarding, you use influence in your presentation, you are influencing the generation whenever you are speaking, you are singing, you are making films or doing ads. What I believe is that the influence actually shapes the mindset for a product or anything else. And mindset then shape up your behavior. And then the behavior shapes the society. So we all are struggling at your platform, at our platform, to shape up to contribute to return to the society. And as part of that, you are struggling to contribute and return to that. So thank you very much for your Thank you. presence. A very Thank you. wonderful session. Please give a big clap.